اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 84 اور 85 کا ترجمہ سیکھیں گے۔ میں پہلے یہ دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ، اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ از جو ہے اس کا مطلب ہے جب، اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے ایک واقعہ جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے، جب پکڑا ہم نے۔ اخذنا، اخذا کا مطلب کسی چیز کو پکڑنا، لینا، اور نہ ہم نے کیا۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر نون شروع میں ہو تو یہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور اگر یہ نون الف نا آخر میں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ماضی ہے۔ اخذنا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا، میثاق۔ اب یہ میثاق کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے نیچے اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ میثاق وعدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو وعدہ ہوتا ہے یعنی عہد، وہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کسی سے کوئی عہد کرے کہ میں یہ کام کروں گا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں تمہیں یہ دوں گا، تو وہ ایک شخص وعدہ کرتا ہے۔ لیکن جب میثاق ہوتا ہے تو وہ دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی دونوں فریق اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا پورا کرنا دونوں فریقوں پر لازم ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان سے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ عدالتوں میں یا کچہریوں میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، کئی خاص بیٹھے ہوتے ہیں جو ایگریمنٹس کو تحریر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وثیقہ نویس۔ تو یہ وثیقہ نویس وہ ہوتے ہیں جو دو پارٹیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو نوٹری پبلک سے ٹیسٹیفائی کروایا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو وہ وثیقہ نویس اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ میثاق ہوتا ہے، یعنی دو پارٹیوں کے درمیان۔ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں لفظ آ گئے ہیں، عہد بھی آ گیا ہے اور میثاق بھی، یعنی کہ اللہ کا عہد اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ینقضون، اس میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد۔ تو میثاق بھی وعدہ ہے، لیکن ایسا وعدہ ہے جو پھر دونوں پارٹیوں نے کیا ہو، یعنی صرف ایک نے نہیں کیا، دوسری نے بھی کیا ہے۔ دوسری آیت میں یہ دیکھیں فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَہَا، کہ جس نے شیطان کا کفر انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے پکڑ لیا ایک ایسے کڑے کو جو مضبوط ہے، عروۃ الوثقیٰ۔ عروہ یعنی کہ وہ زنجیر ہے، وہ کڑا ہے جو بہت مضبوط ہے، الوثقیٰ ہے، لن انفصام لہا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس میں کوئی وہ ٹوٹنا ممکن نہیں ہے اس کا۔ پھر یہ سورہ محمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، یعنی جنگ کی حالت بتائی جا رہی ہے، تو ان کی گردنوں پر وار کرو، حتیٰ اذا اسخنتموہم، پس جب ان کا خون بحال ہو، فشد الوثاق، پس ان کو پھر مضبوطی سے باندھ لو، یعنی ان کو قید کر دو۔ تو فشد الوثاق یعنی سختی کے ساتھ ان کو، مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ لو۔ اور یہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ جو دن ہوگا اس دن اللہ کے عذاب سے بڑھ کر اور کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی مشکیں کس نہیں سکے گا، ولا یوسق، اور کوئی بھی کسے گا نہیں، وثاقہ، اس کی جو مشکیں ہیں اس جیسا، احد، کوئی ایک بھی۔ تو یہ وثاق یا میثاق
या वुस्का, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से बांधना। और जब ये अहद के माने में लिया जाए तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक शख्स अहद नहीं कर रहा, बल्कि दोनों जो फ्रीकैन हैं उस एग्रीमेंट में वो दोनों अपना अपना जिम्मा उठा रहे हैं, अपना अपना वादा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वाइज़ अखज़ना मीसाका, और जब हमने लिया मीसाक बनी बेटों से इसराइला, इसराइल के। अब ये इसराइल जो है ये इसरा और ईल से बना है, और ईल जो है वो उसका मतलब है अल्लाह। ये इब्रानी ज़ुबान में ईल खुदा को कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब था इसराइल। तो अल्लाह ताला ने उनको इसी नाम से पुकारा है, बाइबल में भी यही नाम है इसराइल। और इसी तरह का मिलता-जुलता जो नाम है वो सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ने दिया, जरी अल्लाह। तो जरी अल्लाह का मतलब भी वही है जो इसराइल का मतलब। तो बनी इसराइला, बेटों से इसराइल के, इसराइला है तो इसका मतलब है कि इसराइल के मुतल्लिक बात हो रही है। इसराइलो होता तो फिर इसका मतलब होता है इसराइल ने किया है, लेकिन इसराइल के मुतल्लिक है इसलिए कि लाम के ऊपर ज़बर है। बनी इसराइला, बेटों से, और जब हमने लिया मिसाक बेटों से इसराइल के, क्या मिसाक लिया? ला ताबुदूना, नहीं तुम सब इबादत करोगे। ला ताबुदून, ताबुदून तुम इबादत करते हो, ला ताबुदूना तुम इबादत नहीं करोगे। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब यहाँ देखें फिर अल्लाह की है के ऊपर ज़बर है। इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। वा, और बिल वालिदैन, ये असल में है बे अल वालिदैन, यानी वालिदैन के साथ। तो बे का मतलब है साथ, तो बे अल वालिदैन, और वालिदैन के साथ क्या करना है? एहसानन, एहसान का सलूक करना है। यानी ये तो जो ज़िम्मेदारी है वो तो करनी है, उससे बढ़कर जो काम किया जाए वो एहसान होता है। जो वालिदैन के साथ इंसान को उसने सलूक करने का हुक्म दिया गया है वो तो करना ही है, वो तो फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ के अलावा जो कोई काम किया जाए वो अल्लाह ताला ने उसको एहसान कहा है, यानी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे बढ़कर वालिदैन के साथ सलूक करना वो एहसान। व ज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी। वल यतामा, और यतीमों के साथ। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ। वक़ूलू, और कहा करो। अब देखें कूलू जो है वो कुल की जमा है। कुल का मतलब होता है कह, ये एक के लिए है, कुल कह दो। कूलू तुम सब कहो, क्योंकि सबके लिए जमा से बात हो रही है। जो ग्रोह है यहूदियों का, जो बनी इसराइल का, वो चूँकि एक फ़र्द नहीं है, 12 कबीले हैं, तो उसके लिए जमा का सीगा है। वक़ूलू, और तुम कहा करो। लिन्नास, यानी ले अन्नास। ये भी आपको पता है कि ले का मतलब है के लिए। तो ले अन्नास, लोगों से या लोगों के लिए, हुस्ना, नेक बात, अच्छी बात। व अकीमू, और कायम करो। अकीमू जो है वो अकीम की जमा है, ये आयत आपको पता होगा। अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरह बनी इसराइल में है अकीमिस्सलात। तो अकीम का मतलब है कायम कर। अकीमू, तुम सब कायम करो। अस्सलाता, नमाज को। यहाँ पे देखें फिर जो ता है उसके ऊपर ज़बर है, अस्सलाता, नमाज को। तो जब भी किसी नाउन के आखिरी हरफ के ऊपर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है कि ये मफ़ऊल है, यानी इसके मुतल्लिक बात हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। वक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतुज़ ज़काता, ये आता का जमा है, आतू, तुम सब अदा करो। अज़्ज़काता, ज़कात को। सुम्मा, फिर, तवल्लैतुम, तुम सब फिर गए। तवल्लैतुम, तुम सब फिर गए। देखें यहाँ पे अरबी में तुम आखिर पे आता है, हम उसको शुरू में लाते हैं तुम, यानी ये मुखातिब का सीगा है। तवल्लैतुम, फिर तुम सब फिर गए। इल्ला कलीलन, सिवाय चंद के। मिनकुम, तुम में से, यानी तुम में से जो चंद थे उनके सिवा सारे फिर गए। छोटा सा एक ग्रोह रह गया, चंद अफराद रह गए, बाकी सारे के सारे फिर गए। यानी वो नमाज भी अदा नहीं करते थे और वो ज़कात भी नहीं देते थे। वो लोगों से अच्छी बातें भी नहीं करते थे, बदतमीज़ी करते थे। वो वालिदैन के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। रिश्तेदारों के साथ जो ज़िल कुर्बा यानी करीबी जो लोग हैं, और यतामा के साथ और मसाकीन के साथ, ये जितने भी अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं उससे वो फिर गए, सिवाय चंद लोगों के। इल्ला कलीला मिनकुम, तुम में से।
क्योंकि ये उनसे बात हो रही ना बनी इसराइल से, तो उसको फरमाया कि मिन कुम, तुम में से। ये आपको पता है मिन और कुम की जमा है। व अंतुम, और तुम सब थे, मुरिदून, एराज करने वाले, यानी मुंह फेर कर चली जाने वाले, पीठ फेर कर चली जाने वाले। व अंतुम मुरिदून, ये अंतुम अंता की जमा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये है अंता, अंता की जमा है ये। अंता की जमा अंतुम। और मिन कुम जो है वो किसकी जमा है? मिन का, तुम में से। ये मिनका की जमा है, मिन कुम। तो ये आपको पहले पता है कि का की जमा कुम है और ता की जमा तुम, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। मुरिदून, तुम में से चंद फिर गए, वन तुम, और तुम लोग थे, मुरिदून, पीठ फेर कर जाने वाले। व इज, और जब, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अखजना, पकड़ा हमने, मिसाका कुम, यानी अब ये जो थर्ड पर्सन में बात हो रही थी, जो गायब की बात हो रही थी, मिसाका बनी इसराइला, बनी इसराइल का मिसाक लिया, जब हमने बनी इसराइल का मिसाक लिया। लेकिन अब यहाँ पे बराह रास्त मुखातिब हो रहा है अल्लाह ताला, व अखजना मिसाका कुम, यहाँ पे है ना, मिन कुम सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिन कुम, सुम्मा तवल्लैतुम, तुम जो हो वो फिर गए, यानी वो भी बनी इसराइली थे, लेकिन पहले उसको सीगा गायब में यानी थर्ड पर्सन में जिक्र किया। यहाँ पे सेकंड पर्सन में अब जिक्र आ गया, यानी मुखातिब के साथ, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात से बात हो रही है। वइज़ अखज़ना मीसाकाकुम, और जब हमने लिया, या लिया हमने, अखज़ना लिया हमने, मीसाकाकुम, तुम्हारा मिसाक, ला तस्फिकूना, नहीं बहाओगे। और ये मैंने आपको बताया था कि जब एक ऐसा फेल अमर हो, यानी फेल नफी हो, जिसमें किसी बात के ना करने का हुक्म दिया गया हो, किसी बात से मना किया गया हो, तो उससे पहले ला आता है। आपको पता ही है, ला नहीं, और उसके बाद जो फेल आता है उसके साथ ते का इजाफा कर दिया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है कई दफा। ला तस्फिकूना, और नहीं बहाओगे, दिमाअकुम, तुम अपना खून। दिमाग खून को कहते हैं, कुम तुम्हारा, यानी अगर अपने लोगों का खून बहाओगे तो वो अपना ही खून होगा। वला तुखरिजूना, और नहीं निकालोगे, अनफुसकुम, तुम अपने आप को, यानी अपने लोगों को, बिन दियारिकुम, अपने घरों से, अपनी आबादियों से। सुम्मा अकरर तुम, फिर इकरार किया तुमने, व अंतुम, और तुम थे, तशहदून, गवाह, गवाही देने वाले, यानी वो गवाह थे। तो यानी वो गवाह थे इसके ऊपर, और उनकी किताबों में भी लिखा है, और उनको पता है कि ये हमारे साथ मिसाक लिया गया था। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कुरान ने अपने पास से घड़ी है, बल्कि ये उनके साथ मिसाक लिया गया, और उनकी किताब में ये बातें लिखी हैं, और आज के अंदर जो उनको अहकामात दिए गए थे। पहला तो जो था वो अहकामात थे, नमाज पढ़ना और ज़कात देना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ। तो उससे उन्होंने इराज किया। और फिर जब अल्लाह ताला ने ये मिसाक लिया, वइज़ अख़ज़ना मिसाकाकुम ला तस्फिकूना दिमाअकुम, तुम अपना खून नहीं बहाओगे, वला तुखरिजूना अनफुसकुम, और तुम नहीं निकालोगे अपने आप को, यानी अपने लोगों को। अनफुस नफ्स की जमा है। इसको आप अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा नफ्सों का। तो ये नफ्सों का की जमा है, अनफुसा कुम। तो कुम आपको पता है का की जमा है, और अनफुस जो है वो नफ्स की जमा है। जो गैर अहमदी मुफस्सिरीन है, उन्होंने एक जगह जो लिखा अल्लाह ताला ने कि जब उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया, तो जो है फ़क़्तुलू अनफुसकुम,
تو اس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ان کو کہا کہ اپنے لوگوں کو مارو، تو چنانچہ اس دن سینکڑوں لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا۔ یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو خواہشات ہیں ان کو دباؤ، ان کو قتل کرو، جو بھی تمہیں شیطان حکم دیتا ہے اس کو نہ مانو۔ تو من دیارکم، اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، جو تمہارے انفس ہیں، جو تمہارے نفوس ہیں، جو تمہارے ہی اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، یعنی صرف وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ دونوں پارٹیوں نے اس کے اوپر ذمہ داری لی تھی۔ خدا نے ان سے کہا تھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم ہو اس کے اوپر گواہ۔ اقرار بھی کیا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم تھے اس کے اوپر گواہ۔ تو یہ دو آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔